Welcome and good morning to online class 10. I'm your teacher, Miss Sana Maria. Today is 14 January. Today we start a new chapter. The chapter is how to do things. We have two things in this chapter: arranging a party, and second part is amending a pension. So we start the chapter on the page number 88. If you want to open your books, open. Arranging a party. Shanaz was a very happy because it was her birthday and she had invited her friends to have party at home. Kesar, her dearest and closest friends, was to help her with the arrangements. The guests were to come in afternoons and everything had to be ready to them by them. My two friends take talked about the menu and they decided to serve kebab, samosa, sandwich, fruit chaat, sweet meat, and cake along with tea at the party. They also decided to prepare kebab, sandwich, and fruit chaat at home and buy the rest of the things from the market. The drawing room was the first to receive their attention. They wanted to decorate it in such a manner that none should find fault with it. It was a hard job, but the girls did wonderfully well. The dining room presented a beautiful look when they had finished their work. They took special care in cleaning the crockery and the cutlery before laying the table. Now they get busy in the kitchen. However, they got the help of their mother in making kebab. Kesaria was a expert in preparing fruit chaat, while Shehnaz thought she could make excellent sandwich. Both had a nice time in preparing things of their own choices. They finished their work. They finished their work well in time and were satisfied with what they had prepared. By then it was afternoon. Father came home and bought a big, splendid cake. It bore the name of Shehnaz with a wish of for a happy birthday. He also bought other eatables so that thinking was missing from the menu. Shehnaz and Kesaria arranged everything on the table, giving the place of honor to the birthday cake. They also made arrangements for providing the guests fun and laughter with party games like passing the parcel, treasure hunt, and musical cheer. The parcel game was to be very wait a minute beta was to be very interesting and excited. Interesting and excited, a piece of toffees was put on the small curtain, which has wrapped with many layers of colored paper. Each layer concealed a slip of paper which bore one of such commands, saying a song, crow like a cook, bell like a goat, bray, bray like a donkey. The parcel was to pass from one guest to another. Each would remove only a layer of a wrapping and get up the punishment, and they failed to her lot. The one who get the parcel lost would get the prize, the piece of toffee. Again, in this text we have talking about the arrangement. ठीक है, इस टेक्स्ट में क्या बात हो रही है कि अरेंजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है. शहनाज और केसरिया जो है वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग आपस में कुछ चीज़ें बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं. सबसे पहले वो अपना डाइनिंग रूम जो होता है जहाँ पे सबने बैठना होता है, डाइनिंग टेबल, वो सब कुछ अरेंज करते हैं. पहले उसको क्लीनिंग अच्छे से करते हैं, फिर डाइनिंग टेबल पे अच्छे से क्रॉकरी को बिल्कुल अच्छे से नीट करके साफ करके वो सेटलमेंट करते हैं. फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि मेन्यू में क्या होना चाहिए, व्हाट टू मेक, कि क्या बनाना चाहिए, हाउ टू डू, कैसे करना चाहिए सारा काम.
तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं सैंडविचेस होने चाहिए, केक होना चाहिए, ठीक है, फ्रूट चाट, ठीक है, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें वो घर पे बना लेते हैं, फ्रूट चाट घर पे बनाते हैं, कबाब घर पे बनाते हैं, बाकी चीज़ें कहते हैं कि हम लोग बाहर से जो है वो बाहर से मंगवा लेंगे। तो ये चीज़ें सब उनकी बातें चल रही होती हैं, फिर बाद में उनके जो फादर जो आते हैं, बाहर से आते हैं, तो वो क्या कुछ चीज़ें भी, कुछ ईटेबल थिंग्स भी अपने साथ ले आते हैं, ताकि और जो है वो बर्थडे पार्टी जो है वो और अच्छे से जो है वो हो सके। फिर बर्थडे पार्टी में और क्या करते हैं वो लोग, एन्जॉयमेंट के लिए क्या करते हैं कि वो लोग कुछ गेम्स वगैरह भी डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर पार्सल होता है, पार्सल गेम होता है, ठीक है, पार्सल उस गेम का नाम पार्सल गेम था। फिर एक और गेम था जिसके अंदर क्या वो लोग, एक टॉफी होती है वो रैप रैप की हुई होती है, एक पेपर में रैप होती है, दूसरे पेपर में, तो इस तरह बहुत सारे पेपर्स में उस टॉफी को रैप किया हुआ होता है, और रैप किए हुए के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है कि आपने कोई ना कोई आवाज निकालनी है, कोई किसी चीज की आवाज निकालनी है, गाना गाना है, सॉन्ग सिंग, ठीक है, कुछ भी उसपे उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है, जिसके पास वो रुकता है तो वो फिर ओपन करेगा, तो वो जो है उसको वो करना होता है। लास्ट में जब वो टॉफी बिल्कुल एंड में रह जाती है, लास्ट रैप उसका खुलता है, तो जब वो टॉफी निकलती है तो वो टॉफी उसको मिल जाती है जिसके पास लास्ट में वो ओपन करता है उसको। तो ये कुछ उन्होंने गेम्स जो होती है वो उन्होंने डिसाइड की हुई होती हैं, वो लोग गेम अपने, फिर उन्होंने म्यूजिकल चेयर का भी प्रोग्राम किया हुआ होता है कि द म्यूजिकल चेयर वुड बी द लास्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम एंड द विनर शुड गेट अ प्राइज। वो लोग कहते हैं कि विनर को जो है वो प्राइज मिलेगा, और वो लास्ट में वो लोग क्या म्यूजिकल चेयर भी वो लोग गेम जो है वो रखते हैं। Soon the guests started arriving. Shanaz was led in the beautiful dress, and so were all her friends. She received gift from the guests and expressed her thanks. When all the guests had arrived, Shanaz cut the cake, clapped and cheered, and then the tea was served. After the tea, the guests enjoyed themselves with amusement of all the sort. It was quite late by the time of guests left. Shanaz was happy because it was the good party and everybody had enjoyed. फिर उसके बाद क्या, जब गेस्ट सब आ जाते हैं उसके बाद ये लोग केक वगैरह कट करते हैं, सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है, और सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है वो टी सर्व होती है, टी सर्व करने के बाद क्या होता है, वो लोग एंड में जब सब गेस्ट वगैरह भी चले जाते हैं, और शहनाज जो है वो कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, मैंडिंग आ पेंचर, ठीक है, मैंडिंग आ पेंचर जो इसका सेकंड पार्ट है। अब हम इसका सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट रीड करते हैं, मैंडिंग द पेंचर मीन्स के जो पेंचर जो हो जाता है उसको उसको सही करना, पेंचर की जो है उर्दू में कहते हैं मुरम्मत करना ना, कि सही करना, मेंडिंग अ पेंचर। Riding a bicycle is a joy when one is young, but this joy suddenly vanished when the cycle you are riding get punctured. Suppose you are off from school, you are riding back from nearly. Suddenly, the whizzing sound comes from your hind wheel. You feel while riding that the tire has lost its tightness and the pressing left against the ground. You get down the bicycle. Sometimes there is tires burst, frightening you and the passengers by. The emergency should not worry you if you are prepared for it. You lay your bicycle on the ground and leave it there. You take out your kit from mending the puncture. It contains a piece of old old circle tube, a pair of small scissors, sandpaper, a colored pencil, and sticking solution. Then you get some water in a large shallow pot. You take one edge of the tire of the rim. You take out the tub, inflate it. You dip the inflated tube into the pot of water bit by bit. The movement the punctured part is the of the tube goes down water, air bubbles will be seen coming out of the small hole. What is the hissing sound? The mark the spot with the color pencil, the whole of the tube is tested in the way.
and all the puncture part of the tube are marked. You deflate the tube and let it dry. Then you make then you take the sandpaper and rub the tube at the puncture spot till the surface get rough. You cut a piece from the old tube according to the size of the puncture. You also make its surface rough will be sandpaper. Now you take the sticking solution, you apply some of it to the tube as well as to the piece of rubber and rub it with your finger. You wait for some time till the solution dries the little. You place the piece of rubber on the puncture and press it tightly. The stick to the table puncture has been mended. You put the tube back into the tire, pumping air into it and ride as you wish. This is how one may mend the puncture by oneself. The process of mending a puncture at the cycle shop is a different one. The kind of half solid rubber solution is applied to the puncture part to the tube. It is heated by a certain temperature for some times in a machine which is sorted a press. The solution melts the sticks to the tube so that both are inseparable. This method of mending a puncture is common these days and is more durable. अब इसके अंदर अभी क्या बताया गया है कि मेंडिंग द पंचर, कि अगर फर्ज करें कि आप लोग कहीं जा रहे हो और अचानक से जो वो आपकी टायर जो वो पंचर हो जाए, तो क्या आपके पास कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो है वो आप अपने आप जो है पंचर जो है वो उसको सही कर सको, अपना आपका जो टायर पंचर हुआ है आप उसको सही कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ ट्रिक्स बताई बताई गई हैं कि ये अगर सब चीज़ें हों तो आप जो है वो आप अपनी साइकिल को या बाईसाइकिल को क्या पंचर लगा सकते हैं। इसके अंदर जो पूरी किट बताई गई है, छोटी सी कैंची जो है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक पुरानी जो रिम होती है, पुरानी ट्यूब होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें हों तो क्या टायर जो है वो ठीक किया जा सकता है उसके अंदर। लेकिन अगर ये सब कुछ अगर अगर टायर पंचर जो हो जाए और अगर उसको शॉप पे ले जाया जाए तो वो पूरा उनका एक डिफरेंट पैटर्न होता है, पूरा एक डिफरेंट उनका तरीक़ेकार होता है। लेकिन अगर खुद से जब अचानक से हो जाए तो अगर ये चीज़ें भी हों, ये सब चीज़ें हों, तो इससे भी क्या जो है वो पंचर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो था सारा सारा हमारे पास के अगर कोई चीज़ हो जाती है तो ठीक है उसको किस तरह मैनेज किया जाए, हाउ टू डू थिंग्स, कामों को किस तरह किया जाए। तो ये एक चीज़ बताई गई है कि अगर कहीं जा रहे हैं तो साइकिल पंचर हो जाती है, मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, तो अगर आपके पास ये चीज़ें हों तो आपके पास पूरी टूल किट हो तो आप खुद से भी जो है वो पंचर लगा सकते हैं। पूरे पेंसिल जो कलर पेंसिल होती है उससे निशान लगाते हैं कि कहाँ पे पंचर है, फिर उसको स्मॉल सीजर की मदद से उसको कट किया जाए, जहाँ पे पंचर हुआ है वहाँ पे लगाया जाए। इस पूरे प्रोसेस को किया जाए तो इंसान जो है वो थोड़ा खुद से भी कुछ कर ले तो क्या वो प्रॉब्लम से बच सकता है। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में है तो क्या वो निकल के अपनी उस जगह तक तो पहुँच सकता है ना जहाँ उसने जाना है, बीच में अगर कहीं वो स्टक हो जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द असाइनमेंट। आज का जो हमारा असाइनमेंट है वो क्या है, असाइनमेंट में आपने क्या करना है, ठीक है। डू कंप्रीहेंशन, ठीक है। कंप्रीहेंशन जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, कंप्रीहेंशन के एक्सरसाइज ए है वो, ठीक है। वो मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, ठीक है। वो तो नोट शेयर हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये नोट्स देख के आपने इनको अपनी नोटबुक में भी करना है, ठीक है। सेकंड जो आपके पास जो एक्सरसाइजेज हैं, डू एक्सरसाइज बी सी डी एंड ई एंड जी। अब एक्सरसाइज बी के अंदर आपके पास क्या है, एक्सरसाइज बी के अंदर आपने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं पेज नंबर 86 के ऊपर, आपने उनकी मीनिंग सर्च करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज सी में क्या है, मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे वर्ड्स लिखे हुए आपने इनको नाउन बनाना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज डी है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। कुछ स्पेलिंग लिखी हुई बीच में से मिसिंग है तो आपने वो स्पेलिंग जो है वो लिखनी है। और एक्सरसाइज ई में क्या है आपके पास, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। चैप्टर में से ही कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, ठीक है, वो ब्लैंक्स करनी है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो एक्सरसाइज जी है, एक्सरसाइज जी के अंदर आपके पास इडियम्स दिए हुए हैं, उसकी मीनिंग भी और उसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपने खुद से करनी है,
नाउ टेल मी, इससे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई तो बताइए। यस स्टूडेंट्स, कोई इशू इससे रिलेटेड कोई चीज समझ नहीं आई तो बताइए। क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर? नो प्रॉब्लम। और आपका जो असाइनमेंट है वो Yes, क्लियर miss. है? असाइनमेंट सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes. Okay students, so today's session is over, so take care and Allah Hafiz. Take care students, Allah Hafiz.